بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات، واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. میڈیا پرسنز جب جنرل باجوہ سے ملتے تھے تو وہاں پہ یہ اسرائیل جو ہے سر فہرست ہوتا تھا. اسرائیل سر فہرست ہوتا تھا اور کشمیر کے معاملے میں وہ کہتے تھے کہ اب اس کو بھی ذرا تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں، تو وہ نام لیتے تھے چائنا کا کہ چائنا یہ ہمیں ایڈوائز کر رہا ہے کہ آپ اس کو ذرا ٹھنڈا کریں. جبکہ چائنا نہیں تھا بلکہ وہ ہماری مغربی دنیا تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہاں اس کو اسی طرح روکیں اور سیز فائر کریں اور معاملات کو آگے بڑھائیں. تو یہ تھا. تو دونوں مسئلوں پہ عمران خان کے پاس جب ہم آتے تھے تو عمران خان کے ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی. وہ اپنے جو پاکستان کا پرنسپل سٹانس ہے وہ وہیں پہ تھے. اسرائیل کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ جو 1967 کی ریزولوشنز ہیں اقوام متحدہ کی، اسرائیل اور فلسطین کا تنازع اس کے اکارڈنگلی حل ہونا چاہیے. سمپل. اور 1967 میں جو فلسطین ریاست اقوام متحدہ نے تسلیم کی اس کے اکارڈنگلی اس کو اس کے علاقے واپس کر دیے جائیں اور باقی جو ہے اسرائیل کی ریاست. تو دو ریاستی حل، فلسطین 1964 جو یو این کے ساتھ اقوام متحدہ کی ریزولوشن سلامتی کونسل کی، سیکورٹی کونسل کی، اس کے اکارڈنگلی حل ہونا چاہیے. یہ عمران خان کا اور پاکستان کا پرنسپل سٹانس ہے. اس سے ہٹ کر کوئی انڈر ہینڈ معاملہ طے کرنا وہ نہیں تھے. جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ابراہم اکارڈ کی طرف تیزی سے بڑھتے جا رہے تھے، کیونکہ اس وقت حالانکہ ابراہم اکارڈ اس طریقے سے اس شکل میں بھی نہیں تھا، یہ بعد میں آیا، لیکن جنرل باجوہ صاحب کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ شکل آنے والی ہے. اور پھر سی آئی اے کے چیف، خیر فروری 2019 میں یہ بات ہوئی جی، اور اپریل 2019 میں خواجہ آصف کو بلا لیا گیا. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا شہباز شریف صاحب کو بھی بلا لیا گیا تھا پاکستان کہ جلدی جلدی پہنچے. پھر آ گیا کرونا. جب کرونا آیا تو ان کا خیال تھا کہ اب یہ کرونا میں ویسے ہی ختم ہو جائے گی حکومت اور کرونا ان کو کھا جائے گا، اب یہ ہمیں چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کرونا میں ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مدد کی، عمران خان کی مدد کی، اور کرونا میں پاکستان کھڑا ہو گیا. اور پاکستان میں کرونا میں جس طریقے سے پاکستان نے ہینڈل کیا وہ ایک رول ماڈل بن گیا. اور پاکستان کے ہمسایہ ملکوں میں، چائنا میں تباہی، انڈیا میں تباہی، بنگلہ دیش میں تباہی، ہر جگہ تباہی تباہی، لیکن پاکستان اس میں نکل کے ابھر کر سامنے آ گیا. پاکستان کی انڈسٹری بھی چلتی رہی، معیشت بھی چلتی رہی، روزگار بھی چلتا رہا، اور لاک ڈاؤن بھی نہیں کرنا پڑا، اور ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا پڑا مختلف ایریاز میں. اور پاکستان میں اموات بھی بہت کم ہوئی، نہ ہونے کے برابر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب بھی کر لیا تھا جب واپس گئے بند کمرے میں بیٹھ کے، اور ایسے ہی تھا جیسے وہ ایک پرائم منسٹر اناؤنس کر رہے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں. تو یہ ہوا تھا اس وقت. یہ سارا کچھ ہو گیا تو کرونا میں میاں نکل گئے. نومبر جب وہ نکلے تو اسی دوران انہوں نے 19 میں جنرل باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن بھی لے لی اسی سال ہی 19 میں، کیونکہ اپریل 19 میں جنرل باجوہ نے جب خواجہ آصف کو بلا کر کہا کہ جناب ہم ان کو فارغ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اسی لیے کہا تھا کہ ہم ایکسٹینشن میں پھر کنٹینیو کروں گا. یہ ان کا طے ہوا تھا، میں کنٹینیو کروں گا. تو ظاہر ہے خواجہ آصف صاحب جو اگلی بات نہیں بتاتے وہ یہی تھی نا، کیونکہ اگر گھر سے بلا کے کہا جا رہا ہے کہ جناب آئیں اور ہم عمران خان کو 8 مہینے بعد ہی فارغ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ پنجاب بھی لے لیں اور مرکز بھی لے لیں اور پی ٹی آئی کو ہم فارغ، عمران خان فارغ، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا جنرل باجوہ صاحب کا کہ اسی سال نومبر میں ہی، نومبر 19 میں ہی، چند مہینے کے بعد اپریل کی ملاقات ہے، اور اگلے چند مہینے کے بعد ہی ان کی ہونی تھی، آنا تھا، ایکسٹینشن کا معاملہ آنا تھا. تو خواجہ صاحب یہ آفر لے کے یقیناً گئے ہوں گے. اور اس وقت چونکہ ڈاؤن لیکس کا تازہ معاملہ ہوا تھا، تو اور پھر پاناما چل رہا تھا، پاناما میں انہوں نے مدد نہیں کی تھی. ہو سکتا ہے یہ بات کی ہو نواز شریف صاحب نے کہ نہیں فی الحال اس کو رہنے دیں اور یہ ان کو آپس میں لڑنے دیں مرنے دیں، ہم اس میں دور رہیں گے. ہو سکتا ہے یہ بات کی ہو خواجہ صاحب کی جب پروپوزل ان تک پہنچی ہو. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ نومبر یہ سلسلہ چلتا رہا، لڑائی وہیں سے شروع ہوئی. اور پھر آ گیا جی آپ کا اسی دوران آئی ایس آئی کے عہدے سے بھی کی لڑائی پہ بھی ان کا پھڈا پڑ گیا، اور لڑائی آ گئی نومبر میں.
फिर तहरीक आदम एतमाद, रजीम चेंज ऑपरेशन स्टार्ट होता है। रजीम चेंज ऑपरेशन भी जनरल बाजवा ने सिर्फ इस मकसद के लिए किया था कि एक तो वो जाने से पहले पहले नवाज शरीफ साहब के साथ मामला सेट करना चाहते थे अंदरूनी तौर पे। उधर अमेरिका को बता रहे थे कि भाई ये आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है, ये रूस के साथ भी डायरेक्ट हो गया है, ये चाइना के साथ भी डायरेक्ट हो गया है, ये इसराइल का मामला भी इसने रोका हुआ है, कश्मीर का मामला भी इसने रोका हुआ है। तो ये ऐसी मुखबरियां कर रहे थे। और उसके बाद सऊदी अरब को भी मुखबरियां की जा रही थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको भी मुखबरियां की जा रही थी कि जनाब ये जो सिलसिला है ये असल बंदा ये है गड़बड़ जो कर रहा है। इसलिए आपको याद होगा कि यहाँ तक कि जी ये MBS के बारे में फलां बात कर दी। तो इस तरह की हरकतें भी ये बाजवा साहब ने की क्योंकि MBS के साथ इमरान खान के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और इमरान खान के अरबियों के साथ जो हैं वो कतर के साथ भी अच्छे हो गए, UAE भी अच्छे हो गए और सऊदीज के भी साथ भी अच्छे हो गए, क्यों रिस्पेक्टेबल ताल्लुकात थे। तो लेकिन एक दूसरे में लड़ाइयाँ करवाने की कोशिश की जाती रही। तो ये सब जब हुआ तो फिर एक ही था कि अमेरिका से साइफर मंगवाया जाए। वो फिर साइफर आया और उनको इमरान खान साहब को तहरीक आदम एतमाद के जरिए हटा दिया गया। उसमें जनरल बाजवा साहब की एक ही इंटेंशन थी और वो थी कि उनको 3 साल और मिल जाए। और जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया तो जनरल बाजवा साहब को सबसे पहले अपने बच्चों की तरफ से मज़ाहमत का सामना करना पड़ा और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये आपने कोई अच्छी हरकत नहीं की। और उस वक्त जो है वो इदारा भी ये चाहता था, इदारा भी मुसल्लह अफ़वाज एज इंस्टीट्यूशन में आपकी बात कर रहा हूँ, वो भी ये चाहता था कि ये तहरीक आदम एतमाद के बजाय इलेक्शन की तरफ जाया जाए, इलेक्शन होने दें नॉर्मल और इस चलते सिस्टम को डिस्टर्ब ना किया जाए क्योंकि ये गले पड़ जाएगा। लेकिन जनरल बाजवा साहब को उठनी आई हुई थी और उन्होंने ये हरकत फरमा दी और इस हरकत में नवाज शरीफ एंड कंपनी जो है वो उन्होंने हर चीज़ उनको बहुत ही अच्छी भली लग रही थी। शहबाज शरीफ साहब को कल्टीवेट कर लिया गया था जनरल बाजवा साहब ने मलक अहमद खान के जरिए और शहबाज शरीफ साहब कल्टीवेट हो चुके थे और उन्होंने यकीन दहानियाँ करवा दी थी और चिकनी छुपड़ी बातें भी कर दी थी और एक्सटेंशन की यकीन दहानी भी हो गई थी। सब कुछ हो गया था ख्वाजा आसिफ साहब के जरिए भी, शुजात अजीम के जरिए भी और मलक अहमद के जरिए भी और इरफान और सईद मेहदी साहब, यानी कि बहुत सारे बेशुमार कैरेक्टर्स थे जो इसमें शामिल थे। तो लेकिन हुआ वही कि फौज किसी भी सूरत में जनरल बाजवा की एक्सटेंशन नहीं चाहती थी, नेवर एवर। वो इदारे का यही फैसला था कि ये इनसे फारिग होना है। तो ये दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर साहब के मामलात नवाज शरीफ साहब के साथ दुरुस्त हो चुके थे और उनके वो थ्रू हो चुके थे इरफान सिद्दीकी साहब के जरिए। हमारे शहीद अरशद शरीफ जो हैं वो केनिया में बैठ के ये खबर दे चुके थे क्योंकि इनकी मुलाकात बकौल शहीद अरशद शरीफ साहब के इनकी मुलाकात उनके घर में हो चुकी थी और इरफान सिद्दीकी साहब वाला चैनल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था जनरल आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान और ये एक तयशुदा हकीकत बयान की थी शहीद अरशद शरीफ ने, क्यों हमारी बातें भी होती रहती। तो ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ था और वहीं से चल रहा है जी और ये लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई। फिर नवंबर आ जाता है आपका 22 आ जाता है। नवंबर 22 में जो पैनल जाता है उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब और का नाम नहीं होता क्योंकि वो रिटायर हो रहे होते हैं 24 नवंबर को रात 12 बजे उनकी सर्विस फिर 24 नवंबर को रोक ली जाती है, उनकी रिटायरमेंट मंजूद कर दी जाती है और फिर उनको शामिल कर लिया जाता है बतौर आर्मी चीफ। और यहाँ से जनरल फैज़, जनरल अजहर अब्बास और जनरल साहिब शमशाद मिर्ज़ा इनकी समरी जाती है। जनरल साहिब शमशाद मिर्ज़ा चेयरमैन बन जाते हैं और जनरल अजहर अब्बास और जनरल फैज़ ड्रॉप हो जाते हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बना दिया जाता है आफ्टर रिटायरमेंट। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ और उनको बना दिया जाता है। और उसमें फिर लंदन प्लान आता है। लंदन प्लान में यकीनन जो जनरल बाजवा ने कमिटमेंट की थी उस वक्त जब ये तहरीक आदम एतमाद और रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया तो उस वक्त जो कमिटमेंट थी नवाज शरीफ साहब से उससे अच्छी कमिटमेंट जो फिर
आसिम मुनीर साहब ने यकीनन की होगी। और क्या था कि हम आपको जान छुड़वाएंगे पीटीआई से, इमरान खान के साथ, और जिन जिन लोगों ने आपके साथ ज्यादती की है। तो वो पहले 3 साल ये पूरे ना हो सके और जनरल आसिम मुनीर साहब ना कर सके, और इलेक्शन भी हार गए 8 फरवरी 2024 का। और तमाम तर फिस्तायत के बावजूद जनरल नदीम अंजुम और जनरल बाजवा करते रहे। पहले दोनों एक पेज पे थे, लेकिन फिर जनरल नदीम अंजुम जो है उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और वो जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ हो गए, और वो उनके साथ हो लिए। और जनरल आसिम मुनीर साहब, फिर एक और बात बता दूं कि आखिरी वक्त तक जब ये चलता रहा, जनरल नदीम अंजुम साहब को भी लारा लगाया हुआ था नून लीग ने कि हो सकता है हम आपको आर्मी चीफ बना दें, और 7वें नंबर पर ख्वाजा आसिफ साहब कहते रहे हैं कि हम 7वें नंबर पर भी जा सकते हैं। तो वो एक लॉलीपॉप ही था, क्योंकि मुझे अंदाजा था, मुझे अच्छी तरह, कि जनरल आसिम मुनीर साहब भी नवाज शरीफ साहब के हर दिल अजीज हैं और वही होंगे। हालांकि जनरल आसिम मुनीर साहब भी थे जो अकामा लेकर आए थे, और जनरल आसिम मुनीर साहब भी थे जिन्होंने काजी ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया था बतौर डीजीआई। उन्होंने ये सारा तैयार किया था उन्हीं के ज़माने में। ये लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है कि ये जनरल फैज़, सारे कहते हैं कि जनरल फैज़ नहीं, जनरल फैज़ आसिम मुनीर साहब थे। तो ये दो लाडले थे जनरल बाजवा के, जनरल आसिम मुनीर और जनरल फैज़, ये दो लाडले थे जर्नैल जो हैं, और दो उनके साथ रहे। दोनों की प्रमोशन जनरल बाजवा ने की, 3 स्टार बनाया दोनों को अहम ओहदे भी जनरल बाजवा ने दिए, उनको साथ रखा और उनको गर्म हवा नहीं लगने दी। लेकिन आखिर में जब था, जनरल बाजवा खुद बनना चाहते थे और जनरल फैज़ पैनल में शामिल थे, उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो आर्मी चीफ बने, और ये जो आसिम मुनीर साहब हैं वो कहते थे कि मैं बनूंगा, और ये आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन गए और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ड्रॉप हो गए। जनरल बाजवा चूंकि आर्मी चीफ हैं, इसलिए उनको अभी तक कोई हाथ नहीं लगा सका। रिटायर हुए थे, उनके बिग बॉस थे, बॉस रह चुके हैं, उनको हाथ नहीं लगाया जा चुका कि वो आर्मी चीफ हैं। जनरल फैज़ काबू में आ गए, और नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश भी थी कि जिसने मुझे फेवर नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, और उनको इंतकाम का निशाना बनाया जाए। पीटीआई से मेरी जान छुड़वाई जाए, इमरान खान से मेरी जान छुड़वाई जाए, फैज़ हमीद को निशाना बनाया जाए, क्योंकि जब वो घर टूटा, उनका टूटा था जी कराची में, जब होटल पे छापा मारा था, तो उस वक्त ये सारे का सारा कहा गया कि ये जनरल फैज़ ने करवाया है। और जनरल फैज़, आपको मालूम है कि जनरल फैज़ डीजीआई हो, कोई तगड़े से तगड़ा डीजीआई भी है, तो वो आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। और उस वक्त भी इनको टाइट करना, वो कहते हैं कि कोई ना कोई इनकी वजह होगी कि इनको टाइट किया जाए, ये हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है, क्योंकि सजा किसी को नहीं मिली, और वो लोकली किसी अफसर को, एक आध अफसर को वहां से आगे पीछे कर दिया गया था कराची से, क्योंकि कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, और फिर कराची में सेक्टर कमांडर या रेंजर्स या जो भी थे, तो ये हो नहीं सकता कि आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर हुआ। आर्मी चीफ ने किसी को भी, बड़े को, कोई सजा नहीं दी थी उस मसले पे। और बल्कि जनरल बाजवा बताते थे कि भाई उस कमरे में तो कैप्टन सफ्दर था, इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये भी हुआ। तो बहरहाल अब जब ये 3 साल हो गए, तो उससे पहले पहले डिमांड आ गई थी मार्च, जी हाँ, मार्च में आ गई थी डिमांड, मार्च 23 में। फरवरी में इनको हुकूमत मिली, मार्च 23 में मरीम साफा की डिमांड आ गई ओपनली कि जनाब फैज़ हमीद को निशान इबरत बनाया जाए। लिहाजा फैज़ हमीद को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और उनको 15 महीने तकरीबन गिरफ्तार रखा गया, और मसला और कोई भी नहीं था, फैज़ हमीद से खौफज़दा हैं ये लोग, क्योंकि वो बहरहाल एक टैलेंटेड आदमी है, टैलेंटेड जनरल है। ये बाकी बातें और बताएंगे कि फिर किसी वक्त के जनरल बाजवा साहब जो हैं, उन्होंने हर कोर कमांडर का एक नाम रखा हुआ था, और तमाम कोर कमांडर्स ने जनरल बाजवा का एक नाम रखा हुआ था। ये कहानी फिर सही। उसके बाद क्योंकि बहरहाल ये हुआ था मामला, तो बन गए। अब 3 साल गुजर गए, तो 3 सालों में इमरान खान साहब को जेल में रखने में तो जनरल आसिम मुनीर साहब कामयाब हुए, लेकिन उनके खिलाफ कोई मुकदमा तगड़ा बन नहीं सका।
करप्शन एक माजी में करप्शन होती थी, करप्शन के फाइलें दिखा के इनको किया जाता था। नवाज शरीफ साहब को भी फाइलें दिखा के काबू किया जाता है, जरदारी साहब को भी, मोहतरमा को भी, जितने भी हैं उनको नैब की फाइलें दिखाई जाती थी और वो पकड़े जाते थे। इमरान खान ने कोई करप्शन नहीं की, ना इमरान खान ने, ना उनकी काबीना ने, अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया। लिहाजा जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं यहाँ इस वक्त ये देखें कि जनरल नज़ीर अहमद भट्ट हैं नैब के चेयरमैन और लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और जनरल आसिम मुनीर साहब ने लगाया है, वो भी इमरान खान के खिलाफ, उनकी काबीना के खिलाफ कोई एक केस भी नहीं बना सके। और पहले वाले चेयरमैन नैब जो हैं थे जी, पुलिस सर्विस के थे, सुल्तान साहब, आफ्ताब सुल्तान, वो रिजाइन कर गए थे और उन्हें भी कहा गया था कि आप केस बनाएं इमरान खान के खिलाफ, तो उन्होंने भी कहा था कि मैं ये काम नहीं कर सकता। वो नवाज शरीफ साहब ने चेयरमैन नैब लगाया था तो वो घर चले गए थे और इस्तीफा दे दिया था कि मैं ये काम नहीं कर सकता, कि मैं झूठे मुकदमात बनाऊं और सच्चे मुकदमात छोड़ दूं, ये नहीं हो सकता। वो भी चले गए। अब नजीर अहमद भट्ट हैं चेयरमैन नैब, ये भी कोई केस नहीं बना सके सिवाय तोशाखाना के। और तोशाखाना में खुद अगर ये तोशाखाना फैल गया तो उसमें ना जनरल बाजवा बचेंगे, ना जनरल आसिम मुनीर बचेंगे, ना जरदारी साहब बचते हैं, ना नवाज शरीफ साहब बचते हैं, क्योंकि इमरान खान ने तो जो कुछ किया ऑन द रिकॉर्ड किया और कानून और ज़ाब्ते के अंदर रहकर किया। इन्होंने तो वो कुछ किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। जनरल बाजवा को कितना तोशाखाना में क्या कुछ मिला, कभी कोई हिसाब नहीं आया और कभी रिकॉर्ड पे नहीं आया। जनरल आसिम मुनीर साहब को अब तक तोशाखाना में क्या कुछ मिल चुका है वो भी रिकॉर्ड पे भी नहीं आता और वो भी किसी ने नहीं पूछा। और जब आता है आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वहां पे सवाल किया जाता है तो वो बंदा ही गायब हो जाता है। तो ये मामलात हैं। तो जनरल इमरान खान साहब को अभी तक जनरल आसिम मुनीर साहब बावजूद कोशिश के उनको वो सजा नहीं दिलवा सके जो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं, जो मरीम साहबा चाहती हैं, अभी तक उसमें कामयाब नहीं हो सके। इसलिए जनरल फैज हमीद को पकड़ा जरूर, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई केस नहीं। अगर वो केस बनता है तो अब क्या होता है, अब जनरल फैज हमीद ने जो है वो कहते हैं कि बुलाएं जनरल बाजवा को, बुलाएं जनरल आसिम मुनीर साहब को, बुलाएं जनरल आसिफ गफूर को, बुलाएं आप जनरल साकिब निसार साहब को, बुलाएं इमरान खान को, बुलाएं शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, इन सबको बुलाएं और इनको भी बुलाएं, जनरल बाजवा को भी बुलाएं, इन सबको बुलाएं और मेरे सामने आई विटनेस बॉक्स में मैं बताता हूं कि क्या कुछ हुआ और किसके हुक्म पे हुआ और किसके कहने पे हुआ। फिर मैं बताऊंगा कि नवाज शरीफ साहब के पास मुझे किसने भेजा था जेल में, मैं बताऊंगा कि उनके प्लेटलेट्स कैसे गिरे थे, मैं बताऊंगा कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के मुकदमात कैसे वापस हुए थे, मैं फिर ये बताता हूं, ओपन कोर्ट में बताऊंगा। ये जनरल फैज हमीद, ये जो सारा एक फरसूदा बयान किया जाता है कि 9 मई में अब वो वादा माफ गवाह बनेंगे, वो कभी भी नहीं बनेंगे। और इसलिए कि अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट यही था कि उनको पकड़ा जाता और उनको पकड़कर उनको मीडिया ट्रायल किया जाता और उनको रुस्वा किया जाता, उनके खिलाफ कैंपेन लॉन्च की जाती, वो हो चुकी। और अब जो है मामला जो है, अब वो कहते हैं कि अब क्या हो गया, अब जनरल बाजवा को बचाने के लिए, क्योंकि अब कल से 3 दिन से एक ही बयानिया चल रहा है कि जनरल बाजवा को क्लीन चिट मिल गई, जनरल बाजवा को इसमें शामिल नहीं थे, जनरल बाजवा इसमें, वो जनरल बाजवा नहीं भाई, ये सारी शामिल थे और ये हो नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त भी ये सारा अगर जनरल फैज को पकड़ते हैं, कल को आज पकड़ते हैं जनरल फैज को, तो जनरल फैज तो कह रहे हैं कि बुलाएं उस वक्त के आर्मी चीफ को, बुलाएं उस वक्त के DGISI को, बुलाएं उस वक्त के DGISPR को, बुलाएं उस वक्त के वजीर आजम को और उन वज़राए आजम को बुला लें, बुलाएं उस वक्त के चीफ जस्टिस को, बुलाएं और आके बात शुरू करें। अगर ये आपने मुट्ठी खोलनी है तो मैं तैयार हूं। तो वो मुट्ठी खोलने के लिए तैयार हो चुके हैं और जब वो मुट्ठी खोलने के लिए तैयार हैं तो ये आग जो है वो फैल रही है, पीछे की तरफ जाएगी और ये जनरल बाजवा साहब को थोड़ी रहेगी, क्योंकि फिर वही बात है कि हर आर्मी चीफ का एक DGMI और DGISI और DGC, हर आर्मी चीफ की यही आंखें होती हैं और यही जुबान होती है। तो फिर अगर जनरल बाजवा का DGC अगर आप पकड़ते हैं और जनरल बाजवा का DGISI पकड़ते हैं और उसको कहते हैं कि ये मुजरिम है, तो फिर जनरल आसिम मुनीर का भी एक DGC है, जनरल आसिम मुनीर का भी एक जनरल फैज है, जनरल आसिम मुनीर का भी एक DGMI है और जनरल आसिम मुनीर का भी एक DGISPR है और जनरल आसिम मुनीर का भी एक चीफ जस्टिस होगा। तो फिर ये मुट्ठी खुलेगी, जनरल बाजवा की, जनरल फैज की मुट्ठी खुलेगी तो जनरल बाजवा की मुट्ठी खुल जाएगी
اور اس وقت سارا اور اگر اس وقت کی مٹھی کھولتی ہے تو اس وقت کو فیصل نصیر تھوڑی ہے. فیصل نصیر تو وہ نہیں ہے ترم خان کہ وہ جو چاہے کر لے, یا اس وقت عاصم ملک جو ہیں وہ اپنے طور پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے, اور یا ڈی جی ایم آئی واجد عزیز ہیں وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. وہ سب رپورٹ کس کو کر رہے ہیں؟ عاصم منیر صاحب کو. یہ ان کے بگ باس ہیں, اور عاصم منیر صاحب ان تینوں کے ذریعے جو کچھ بھی ہوگا ان تینوں کو حکم دیں گے, اور یہ اس حکم کے ماننے کے پابند ہیں, اور اس کو نہیں کریں گے تو نہ ان کو پروموشن ملے گی, نہ ان کو مراعات ملیں گی, نہ ان کو عہدہ ملے گا. تو یہ کمزوریاں انسانی اور یہ سسٹم کی کمزوریاں کہ ایک فرد واحد کی اتھارٹی میں سب کچھ دے دیا جائے. پرائم منسٹر کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے, اس کو رولز اینڈ پروسیجرز دیکھنے پڑتے ہیں, اس کو کابینہ کو دیکھنا پڑتا ہے, اس کے سامنے لا منسٹری آ جاتی ہے, اس کے سامنے فائنانس منسٹری آ جاتی ہے, اس کے سامنے انٹیریئر منسٹری آ جاتی ہے, وہ ان سے رائے لیتے ہیں. آرمی چیف تو کسی سے رائے لینے کے پابند نہیں ہے, وہ تو بالکل مادر پدر آزاد ہیں, اور ان کو تو نہیں ہے. وہ تو ایک اشارے سے چاہیں گے تو ڈی جی آئی ایس آئی کو اٹھا کے پھینک دیں گے, ایک اشارے سے اگر آج ہی وہ فیصلہ کریں گے عاصم منیر صاحب میں نے سارے کور کمانڈر تبدیل کرنے تو وہ ہو جائیں گے. یہ سچویشن, اور آج ہی عاصم منیر صاحب چاہیں کہ میں نے 50ویں آدمی والے کو اٹھا کے لیفٹیننٹ جنرل بنانا ہے تو وہ بنا سکتے ہیں, ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اس لیے فوج کے کو سمجھنے کے لیے یہ سارا سسٹم سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اگر جنرل فیض حمید وہ کہتے ہیں کہ جناب آئیں جناب شروع ہو جائیں, کھولیں مٹھی, میں تیار ہوں, اور بلائیں, اور تو اس میں جب بلائیں گے تو جنرل باجوہ, جنرل فیض اکیلے نہیں, جنرل فیض کے ساتھ عاصم منیر صاحب تھے اور جنرل باجوہ صاحب تھے, یہ 3 لوگ تھے, اور نوید مختار صاحب آ کے گواہی دیں گے, اور اس وقت ڈی جی آئی وہ تھے, وہ بھی آ کے بتائیں گے کہ جناب یہ حکم کس کا تھا, جنرل باجوہ صاحب کا حکم تھا. کچھ حکم جنرل فیض کو دیے جا رہے تھے, کچھ جنرل عاصم منیر صاحب کو دیے جا رہے تھے, کچھ کام جنرل فیض نے کیے, کچھ کام جنرل عاصم منیر صاحب نے کیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس والے پورشن کو تو آپ کہیں گے جناب ہم نشان عبرت بنا دیں گے, اس والے کو چھوڑ دیں گے, تو یہ نہیں ہو سکتا. تو ہر دور کا ایک جنرل فیض ہوتا ہے, ہر دور کا ایک جنرل عاصم منیر ہوتا ہے, اور ہر دور کا ایک جنرل باجوہ ہوتا ہے. تو یہ پورے کا پورا ایک سسٹم ہے, اس کے اکارڈنگلی چل رہے ہیں. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس لیے سرکاری بیانیہ جو ہے وہ چل نہیں رہا, اور سرکاری بیانیہ جنرل فیض حمید کو جیل میں رکھ کے جو سزا سنا کے کیا تھا وہ آگے پروان نہیں چڑھ رہا. تو دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا, کیونکہ جنرل فیض سے صرف سب سے زیادہ فیض یاب ہوئے ہیں تو نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز, مریم صاحبہ, اور پیپلز پارٹی اور بہت سارے ہم نوا جو ہیں وہ فیض یاب ہوئے ہیں. پی ٹی آئی جنرل فیض سے اتنی فیض یاب نہیں ہوئی جتنا کہ ان کو کہا جاتا ہے. تو وہ اتنا ہی فیض یاب ان کو اجازت تھی جتنا جنرل باجوہ اجازت دیتے تھے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. فی الوقت اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.